Hey guys, what's up? Today we are going to discuss about our open book exam, that is in CS Professional Module 3 पेपर नंबर 9। आज जो है हम लोग ये समझेंगे कि हाउ कैन वी सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम, हाउ कैन वी स्कोर एटलीस्ट 60 मार्क्स एंड above in this open book exam so that you can easily crack your module 3 with the help of this exam, because as we know that student is able to score more than 40 marks in the individual subject in most of the cases, but एक जगह पर जाके वो रुक जाता है एंड दैट थिंग इज एग्रीगेट मार्क्स. सो दिस ओपन बुक एग्ज़ाम विल help you a lot in getting that 150 aggregate in module 3. Okay students, chalo we will proceed now. About open book exam, I would like to share with you that in this video we are going to discuss at least some of the basic strategies that will help you immensely while attempting your paper. We will also solve one sample question paper over here, that is I will take any of your past years exam question paper. It will not be possible for me to take all the subjects question papers, all the 5 subjects question papers, but at least we will try to solve one of the question papers so that you can get an idea how to attempt some of the questions that are very important while giving your examination. Okay students, ओपन बुक एग्ज़ाम का नाम सुन के बहुत लोग जो एक लेमैन है या फिर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन्हें यही लगता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम मतलब बुक खोल के लिखना है, व्हाट अ बिग डील इन दैट. बट स्टूडेंट, दैट इज़ नॉट द केस. अगर आप एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए आपने अपने ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम आपने एक बार भी अपना मॉड्यूल नहीं खोला, इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं खोला, एंड यू गो डायरेक्टली थ्रू द एग्जामिनेशन हॉल, I am sure you will not be able to write your exam in an effective manner and not be able to score the target that we are setting, that at least get 60 marks, at least 60 marks. You can get up to 70 marks, 75 marks also, but at least 60 marks you should get in this exam so that you will be able to pass easily, and this group can even help you set off the other groups as well. Okay, सो विल स्टार्ट नाउ. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्ज़ाम फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम इज़ द ICSI स्टडी मटेरियल. ICSI study material is the most important book that you have to carry in your open book exam. Okay students, also other than that I will be sharing you I will be sharing with you my master index, which one of my friends Deepak Ochani and we have prepared during our student time when we also have appeared for the open book exam. I have also appeared for the open book exam of the institute, and during our preparation time we have developed some tricks which I am going to share with all of you students. Okay students, so just keep patience for time. I will show you the alphabet wise index as well, and how you can use that index together with the index given at the module, in the module, and detail chapter wise index also. You can use that alphabet wise index. You can this alphabet wise index will come as your savior, because when we were giving exam, I have also appeared for the same exam some time back. I am a company secretary, but I was also a student like you. My name is CS Karthik Chaudhary, and when we were attempting the paper, जब हम I will use Hindi because some of the students are not able to understand English, and there is a dual problem, because some of the students are not able to understand Hindi at all, and some of the students are not able to understand English properly. That is not a big deal, but I will make separate videos for students who cannot understand Hindi. Okay, they can approach me and they can tell me if they require a separate video. So students, जब हम prepare कर रहे थे उस time at least 2 बार हम लोग ने मॉड्यूल पढ़ा था. ओके, इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ा था.
उसके बाद भी जब हम लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने गए तो अराउंड 85 मार्क्स टू 90 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है दैट was attempted by me. I am sharing you with my personal experience. 80 marks का पेपर मेरा हो गया था around and there was around 5 to 7 minutes left in the bell examination complete होने के अंदर. So I was not able to find answers to at least 2 or 3 questions, or there was, you can say that time was less because after all I was also a student like you. I was giving the paper for the first time, so at that time I was unable to find the topic in the index given in the module, and I was even unable to recognize the chapter that from which the question had come. So we had prepared the alphabet wise index during our preparation. That index came as our rescue. It was the idea of my friend and we made the index. And मैं आपको बता सकता हूँ कि एटलीस्ट जो 10 मार्क्स हैं वो मेरे उस इंडेक्स की वजह से आए. एंड मैंने जो है पिछले अटैम्प्ट्स में वो इंडेक्स और भी स्टूडेंट्स के साथ, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, तो उन लोगों को भी बहुत इसका फ़ायदा मिला है. तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वो इंडेक्स, किस तरह आप वो इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम जो है आगे दूसरी चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ IPR का इंडेक्स जो है वो शेयर किया है, ओपन किया है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस. आइए देखते हैं किस तरह से ये इंडेक्स जो है प्रिपेयर किया गया है. हमने जो है आपके मॉड्यूल्स के जो भी मॉड्यूल के अंदर जो भी आपके कंटेंट्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है. लाइक द टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम A B. इसके अंदर आपको जैसे बेनिफिट्स हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में आपके इसमें तो एक ही दे रखा है, जैसे 4-5 है तो सारे बेनिफिट्स आपको साथ मिल जाएंगे. और सपोज़ करिए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन. ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि नहीं ध्यान आ रहा कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर में से पूछा गया है, तो यू कैन डायरेक्टली रेफर द अल्फ़ाबेट वाइज इंडेक्स. ठीक है, या तो आप डायरेक्टली पेटेंट में चली जाइए, आपको पेटेंट में मिल जाएगा PPP पेटेंट. ओके, ठीक है. या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन. ये रहा एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन. सॉरी, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट डिज़ाइन. सो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, पेज नंबर 218. नाउ हम डिज़ाइन पे जाते हैं, D पे. डिज़ाइन यहाँ पे आपको नहीं मिला, बट एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन आपको मिल गया. ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ एक टॉपिक आपको इसमें ना भी मिले, बट पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा गया था मॉड्यूल के अंदर वो था एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, वो आपको मिल गया. इसी तरह से हम पेटेंट का देखते हैं. पेटेंट का आपको दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट, एप्लीकेशन फॉर पेटेंट. और इसी तरह अगर आपको पेटेंट चाहिए, पेटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है थोड़ा लेंदी है, तो हो सकता है कि जैसे आपको एक पेटेंट दिखा रहा है पेज 15 पे, एक पेटेंट दिखा रहा है पेज 26 पे, तो आपको वो चैप्टर तो बता देगा, इट विल टेल यू द चैप्टर, बट अब वो चैप्टर बता देगा तो एटलीस्ट इतना तो आपको चैप्टर के अंदर जाके तो सर्च करना पड़ेगा कि पेटेंट का चैप्टर मिल गया, तो अब एप्लीकेशन फॉर पेटेंट कहाँ होगा. वैसे इसमें दे रखा है एप्लीकेशन फॉर पेटेंट भी पेज नंबर 47 पे. ओके, तो उस चैप्टर में आपको जाके सर्च करना पड़ेगा. मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको मिलेंगे. कुछ एक टॉपिक्स हो सकते हैं कि जो आपको ना भी मिले, तो वो आपको एक बार जाके देखना पड़ेगा.
अब जैसे हमने डिज़ाइन का देखा था, एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, पेज नंबर 218। इसी तरह डिज़ाइन का एक और है असाइनमेंट ऑफ डिज़ाइन, पेज नंबर 224। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा आपके असाइनमेंट ऑफ डिज़ाइन पे आएगा या फिर एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रे क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का डिज़ाइन का उस पर आएगा। तो डायरेक्टली आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ाबेट वाइज इंडेक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू ओनली, वी हैव कैप्ट नॉमिनल फीस दिस टाइम, ₹99 फॉर सॉफ्ट कॉपी एंड ₹199 फॉर हार्ड कॉपी विच विल dispatched ऑन योर एड्रेस। ओके, एंड अराउंड 15 to 16 पेजेस हैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में, एंड कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे IPR वगैरह में और इंश्योरेंस लॉ में और भी कम हैं, अराउंड 10 to 12 पेजेस हैं, ठीक है। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 7877416298। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इंडेक्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी लिख लीजिए CSLLB कार्तिक KARTIK चौधरी CHOUDHARY CSLLB कार्तिक चौधरी @gmail.com। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टूडेंट बैठी है और शी इज़ गिविंग द ओपन बुक एग्ज़ाम जस्ट लाइक यू ऑल विल बी गिविंग, एंड शी हैज़ टेकन can you count how many books? Around 12 books and one on the table, and she's writing the question paper. She has taken with her 12 books, which I have found that many of the students do. I have personally seen while giving exam, and after that also I have come to know, और इतनी नहीं बट इसकी आधी बुक्स तो मैं भी लेके गया था एग्ज़ाम में, बिकॉज आई वॉज गिविंग द एग्ज़ाम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार चलो ये भी ले जाते हैं, ये भी ले जाते हैं। बट जब मैं एग्ज़ाम देके एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकला तो मैंने देखा कि मैंने कितनी बुक्स यूज़ करी हैं। सो मैं आपको सही बताऊं तो मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यूज़ किया था, अपना डिटेल इंडेक्स यूज़ किया था, अल्फ़ाबेट वाइज इंडेक्स यूज़ किया था, और साथ में जो है हमने अपना कुछ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस लॉ का पेपर था तो उसमें हमने FDI पॉलिसी जो उस टाइम थी लेटेस्ट, वो FDI पॉलिसी प्रिंट निकाल के लेके गए थे 20-25 पन्नों का, जिससे हमने रीसेंट जो डेटा था फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो कोट करे थे। कोटिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स गिव्स इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर दैट स्टूडेंट ने जो है मेहनत करी है, उसने मॉड्यूल के अलावा भी दूसरी चीज़ें पढ़ी है, सर्च करी हैं, उसको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। अगर आप रेलिवेंट सेक्शंस कोट कर रहे हैं, कुछ फिगर्स लेटेस्ट कोट कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है दैट इज़ नॉट लेटेस्ट वन इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। कैपिटल कमोडिटी मार्केट में मार्च 2017 में रिलीज़ हुआ इंडेक्स, बाकी जो आपका IPR IBL वगैरह के जो हैं बाकी के आपके जुलाई 2015 एडिशन है। उसके बाद FDI पॉलिसी 2016 आ गई है, तो एटलीस्ट आप FDI पॉलिसी 2016 के तो फिगर्स कोट कर ही सकते हैं अपने पेपर में, अगर IBL का पेपर दे रहे हैं तो दैट विल गिव अ इम्प्रेशन दैट यस यू आर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट। और कुछ हटके, क्योंकि मॉड्यूल में से तो जो आंसर लिखा है वो तो सब लिख के आएंगे, बट आप एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं ना। तो उसके लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप जब अपना मॉड्यूल की रीड कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको मैं बताऊं मॉड्यूल को आपको एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है, मॉड्यूल को आपको अपना दोस्त बनाना है, बिकॉज मॉड्यूल ही वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को जब आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 2 बार जब आप पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप वहाँ पर लिख सकते हैं, अपने मॉड्यूल के ऊपर आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख सकते हैं। ओके, उससे क्या होगा कि जब आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको अलग से वो कोई प्रिंट आउट्स वगैरह रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहाँ से आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को में फिगर्स कोड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जब आप मॉड्यूल रीड कर रहे हैं, व्हेन यू आर रीडिंग, मैं ये नहीं कहूँगा आपको मेमोराइज़ करना है, ओपन बुक एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, बट आपको एटलीस्ट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कौन सी चीज़ किस जगह पर दी गई है।
कौन सी चीज़ किस जगह पर दी गई है, ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपका टाइम एग्ज़ाम में बहुत सेव होगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ें उस टाइम आप साइड बाय साइड अपना एक हाइलाइटर लेके अंडरलाइन करते रहे मेन पॉइंट। बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत बार क्या होता है ना, जैसे सपोज कर कीजिए कि एक क्वेश्चन पुट अप किया गया फॉर 5 मार्क्स। अब उस 5 मार्क्स के लिए एक, मान लीजिए पेटेंट पे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेटेंट, अब उस पेटेंट के लिए 3 पन्ने दे रखे हैं। ठीक है, अब 3 पन्ने तो आप लिखेंगे नहीं, 3 पन्ने नहीं लिखेंगे तो आपने मेन चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। पेटेंट के अलावा और भी कोई एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे, तो हम मेन चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखी हैं अपने हाइलाइटर से, तो एग्ज़ाम में हम वो मेन पॉइंट लिखेंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जब उन्हें दिख गया कि यार इस पे तो 3 पेज दे रखे हैं, तो स्टूडेंट्स चालू हो जाते हैं लिखना, दे कीप ऑन राइटिंग, और 2 पन्ने लिख देते हैं, 3 पन्ने लिख देते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 1 पेज लिखिए या 1.5 पेज लिखिए। अगर आपकी राइटिंग छोटी है या मतलब नॉर्मल है तो 1.25 पेज तक लिख दीजिए, अगर थोड़ी बड़ी है तो 1.5 पौने 2 पेज लिख दीजिए, बट 3 पेज 2.5 पेज 3.5 पेज इतना मत लिखिए। बिकॉज तब आपको पता पड़ेगा कि आप एक क्वेश्चन में आधा घंटा लिखते रहे और बाद में पता पड़ा कि टाइम ही नहीं बचा आपके पास आगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और आप 20-25 नंबर का पेपर छोड़ के आ रहे हैं, तो एग्जाम्शन लाना मुश्किल हो जाता है उस केस में। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको यही बोल रहा था कि आप हाइलाइटर से मार्क करिए, वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है अगर आपको लिखना है तो वहाँ पर लिखिए साथ में। ओके, एंड जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो हाईलाइटेड चीज़ें जो हैं उनको लिखिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के आइए। बुक्स जो है आपको इतनी सारी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है जितनी यहाँ पर पड़ी हैं, बिकॉज इतनी लेके जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूज़ क्या करना है, और अननेसेसरीली स्पेस घेरेंगी, आपका दिमाग घेरेंगी फैले। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके जाइए, अगर आपने कहीं से क्लास ली है, अगर किसी बुक से पढ़ा है तो वो ले जाइए। साथ में मैं ये आपको बोलूँगा कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप पेपर स्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट्स जो हैं आप लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट फिगर्स लिखने के लिए। और बहुत बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सा चैप्टर कहाँ दे रखा है, वो एक पेपर स्लिप और लगा लेते हैं जिससे ईजीली जो है वो चैप्टर आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिकी नोट्स तो आप एटलीस्ट यूज़ करिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखने के लिए। कोई पर्टिकुलर पेज आपका मॉड्यूल में दे रखा है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, आपने नोट कर ली पढ़ते वक्त अलग से नहीं। ठीक है, एटलीस्ट आप 3-4 दिन तो देंगे इस पेपर के लिए, बाकी पेपर्स के लिए आप महीने दे रहे हैं। मैं इतना नहीं, ये नहीं कहूँगा आप टैक्स लो जितना टाइम दीजिए या आप FM जितना टाइम दीजिए, बट एटलीस्ट 3-4 दिन इस पेपर को दीजिए ताकि आप एफिशिएंटली 60-65 नंबर इस पेपर में ला सकें। ठीक है, ग्रामर का स्पेशली ध्यान रखिए इस पेपर के अंदर, ग्रामेटिकल एरर्स मत करिए, सेंटेंसेस जो हैं प्रॉपरली फ्रेम करिए। आंसर्स जब आप कर रहे हैं पैराग्राफ फॉर्म में, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए, साथ में एक कॉपी रखिए अपने पास में, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाइए। ठीक है, एंड जब आप स्टूडेंट्स आंसर्स लिख रहे हैं ना, तो आंसर्स लिखते हुए ध्यान रखिए कि टू द पॉइंट आंसर लिखिए, बेमतलब का कचरा मत लिखिए। बिकॉज एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि आपको जो दुनिया भर की नॉलेज है आप वहाँ शो कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो लिखिए। बिकॉज मन से आप लिखते जाएंगे तो पता नहीं पड़ेगा आपने कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, और इट विल नॉट गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर। सो आप जब आंसर लिख रहे हैं टू द पॉइंट लिखिए। जैसे मान लीजिए बेनिफिट्स ऑफ किसी भी चीज़ का आपको आया, राइट द एडवांटेजेस ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आप अपना बेसिक एक इंट्रोडक्शन दीजिए उस चीज़ का, और उसके बाद लिखना चालू कर दीजिए। द बेनिफिट्स ऑफ दिस आर, पॉइंट वाइज लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट लिखिए। उसके बाद जो है पॉइंट्स जो हैं आप अच्छे से हाईलाइट करिए, और वो पॉइंट आपके एक्यूरेट होने चाहिए। अंदर का मैटर आपने भले ही पूरा नहीं लिखा, इतना टाइम नहीं मिलता, बट वो पॉइंट्स अगर आप सही लिखेंगे तो बहुत बार होता है एग्जामिनर अंदर का मैटर पढ़ता नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा नहीं पढ़ेगा, बट पॉइंट आप एटलीस्ट सही लिखिए, उसके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आप चाहें तो ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं पॉइंट को, चाहें तो ब्लू पेन के नीचे अंडरलाइन करके भी वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट्स नहीं है, पैराग्राफ फॉर्म में है, तो उसके लिए आप जो है दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अंदर
एरो मार्क्स यूज़ कर सकते हैं। एरो मार्क्स इस तरह से, मान लीजिए कि आपने ये लिखा, एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, ठीक है, 4 लाइन लिखी, उसके बाद पैराग्राफ चेंज वापस से इस तरह लिख गया, ठीक है। तो छोटे छोटे एरो लगा दीजिए या फिर आप डॉट लगा दीजिए, जिससे ना एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगे कि यार ये क्या 2 पेज बिना पैराग्राफ चेंज करके आपने लिखे हुए हैं। तो उससे क्या एग्जामिनर को पढ़ने का मन भी नहीं करेगा और वो आप बिना आपका कंटेंट पढ़े मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंटेशन का खेल है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखिए। राइटिंग आपकी अच्छी नहीं भी है तो पॉसिबल नहीं है कि आप 1 महीने में राइटिंग चेंज कर लें, बट एटलीस्ट थोड़ा खुला खुला लिखिए ताकि पढ़ने में आए। स्पेस देके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उतना ही लिखिए जितना पूछा है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मत लिखिए। जितना 10 नंबर का क्वेश्चन है 2 पेज लिख दीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है सवा पेज लिख दीजिए, ठीक है। इतना लिखिए, इससे बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो पेपर आपका छूटने का डर रहेगा। आप बाद में जैसे जगह छोड़ सकते हैं, हो अगर आपका एग्ज़ाम पूरा अटैम्प्ट हो गया है तो फिर आप वापस पीछे आके उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है, आप जो पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसमें आप ध्यान रखिए। मैं आपको एक बार जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है आपका, वो आपका आता है पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है रेगुलेशन बेस्ड आता है, टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन रेगुलेशन बेस्ड मतलब कुछ रेगुलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिक्योरिटी, ये अपना कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट में सेबी एक्ट के रेगुलेशन हैं या फिर कंपनी लॉ के रेगुलेशन हो गए, तो उन रेगुलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो रेगुलेशंस, वो रूल्स आपको अप्लाई करने हैं, वो बुक में दिए हुए हैं आपके, बट थोड़ा सा उनको आपको प्रॉपरली आपने पढ़ा हुआ है तो वो आप क्वेश्चन समझना पड़ता है। इनडायरेक्टली थोड़ा क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स में, बाकी फिर 20 मार्क्स के जो आपके 4 क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मॉड्यूल में से पूछे जाएंगे, तो उनके लिए आप इंडेक्स वगैरह यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। और डायरेक्टली अगर आपको आंसर मॉड्यूल में मिल रहा है तो बेवजह का अपना दिमाग मत लगाइए, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में दे के और फिर जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उसको आप हल्का फुल्का सा लैंग्वेज में चेंज करके उतार सकते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स वाले में क्वेश्चन जनरली थोड़े से इनडायरेक्ट होते हैं, बट रेगुलेशंस अगर आपने पढ़े हुए हैं, आपने मॉड्यूल रीड किया है, तो आप उस केस में आपको, आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन समझने में, थोड़ा सा टाइम लेके पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको समझ आएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं रेगुलेशंस, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने इधर अबाउट ओपन बुक एग्ज़ाम। In an open book exam, you are evaluated on understanding rather than recall and memorization। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जा रही है, आपको ये देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर केस दिया गया है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है, अगर रियल लाइफ सिचुएशन होती तो आप अपना दिमाग लगा के किस तरह से उसको यूज़ करते, किस तरह आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ करके उसको सॉल्व करते, ठीक है। You will be expected to apply material to new situations, analyze elements and relationships, synthesize or structure, evaluate using your material as evidence। आपको इवेल्युएशन करना है अपना मटेरियल यूज़ करके, आपको एक्सेस दिया जाएगा बुक्स नोट्स का, ठीक है। एग्ज़ाम कैन बी टेक होम और इन द क्लासरूम, आपका इन क्लासरूम है विद क्वेश्चन सीन और अनसीन बिफोर द एग्ज़ाम टाइम। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द प्रिपरेशन नीडेड फॉर एन ओपन बुक एग्ज़ाम। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं, दे अंडर एस्टिमेट, वो बोलते हैं यार चलो बस बुक ले जाएंगे उठा के, पूरे साल मॉड्यूल उठाया नहीं और एग्ज़ाम में ले गए, तो आपको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आपके दिमाग में ये नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ दे रखी है। योर टाइम विल बी लिमिटेड, सो द की इज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू क्विकली फाइंड डेटा। टाइम लिमिटेड है तो आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह आप डेटा क्विकली फाइंड करें, किस तरह आप अपने चार्ट्स को यूज़ करें,
एग्जाम्पल्स और आर्ग्यूमेंट्स आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। कुछ कोट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो कोट्स लिख सकते हैं, बट ओवर कोटिंग भी मत करिए। कि करंट डेटा आप अपने पास रखिए। कंसाइज शॉर्ट नोट्स अगर हैं आपके पास, कहीं आपने क्लास वगैरह ली है तो वो यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड योर ओन कमेंट्री ऑन द इंफॉर्मेशन। आप अपना पर्सनल व्यू पॉइंट भी लिख सकते हैं, बट बुक में जो लिखा है उसके बाद। दैट विल प्रोवाइड फ्यूल फॉर योर आर्ग्यूमेंट्स। एग्जामिनर को लगेगा स्टूडेंट ने अपना दिमाग लगाया है, कुछ व्यू पॉइंट है उसका। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव थॉट दिस थ्रू। एंटिसिपेट विद मॉडल क्वेश्चंस पेपर। आप एटलीस्ट, मैं आपको बोलूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर आपको अटैम्प्ट करना है। प्रीवियस पेपर कर सकते हैं, सैम्पल पेपर कर सकते हैं। बहुत पुराने सैम्पल पेपर भी मत करिएगा, बिकॉज 2014 जून में जब ये आपका ओपन बुक का एग्ज़ाम आया था तो उस टाइम जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर्स निकाले थे उसके अंदर आपको केस स्टडी नहीं मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि आपके मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो थ्योरेटिकल IBL हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, इनके अंदर आपको केस स्टडी पूछी जाती है 50 नंबर की, और फिर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 10-10 मार्क्स के। ठीक है, तो आपको पुराने सैम्पल पेपर में केस स्टडी नहीं मिलेगी, मगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप वो रेफ़र कर सकते हैं। गाइडलाइन आंसर्स भी आपको अवेलेबल हैं इस सब्जेक्ट के पुराने, वो आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज योर रेफरेंस मटेरियल जो है आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दिन पहले रात को प्रॉपरली अरेंज करके सोएं, बिकॉज अगले दिन ये ना हो कि ये मटेरियल नहीं मिल रहा और फिर आप मूड ख़राब करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। मेक योर रेफरेंस मटेरियल एज यूज़र फ्रेंडली एज पॉसिबल। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली रहेगा, आपको अपने दोस्त की तरह लगेगा, एग्ज़ाम में भी आप लेके जाएंगे, प्रॉपरली उसको यूज़ करके आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ बातें मैंने आपको बताई। कुछ एक पॉइंट्स अब मैं आपको और बताऊंगा। मैंने एक चीज़ आपको ये बताई कि अपना जो मॉड्यूल है उसको अपना दोस्त बना के चलिए, एटलीस्ट उसको 2 बार पढ़िए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक बार कि इंस्टीट्यूट जो था उसने ये पैटर्न जो है क्यों इंट्रोड्यूस किया था, बेसिक उसका क्या आइडिया था ये पैटर्न इंट्रोड्यूस करने के पीछे। So, Institute introduced open book examination in all the 5 elective subjects from June 2014। क्या किस वजह से इंस्टीट्यूट ये लेके आया? टू इनकलकेट एंड डेवलप स्किल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अवर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक एन ओपन बुक, और लाइफ में भी हमें क्रिएटिवली वर्क करना चाहिए। हमारे आइडियाज़ जो हैं उन्हें आने देना चाहिए। creativity is the main point which is very of utmost importance in this exam and in your real life also. This is to inculcate and develop skills of creative thinking, problem solving। particular आपको केस दिया जाता है, सिचुएशन दी जाती है, उसको किस तरह आप सॉल्व करें, डिसीजन लेना है among students of its professional program and to assess their analytical ability। कैपिटल कमोडिटी मार्केट के अंदर, बैंकिंग में और भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना स्टूडेंट्स, वो टेस्ट की जाती है। ओके, बैंकिंग लॉ और कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट के स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग अपना ड्यूरिंग योर स्टडीज़ जब आप अपना FM का पेपर या फिर टैक्स का पेपर पढ़ते हैं तो आप एक अपने साथ में एक जो आपकी फार्मूला शीट है वो प्रिपेयर करते चलिए, बिकॉज फार्मूला शीट आपके ओपन बुक एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंकिंग के अंदर आपका वर्किंग कैपिटल से बहुत सारा पोर्शन आपका पुटअप किया जाता है, और फॉरेक्स हो गया, फॉरेक्स से आपका पूछा जाता है, कैपिटल बजटिंग से पूछ लिया जाता है। तो एक फार्मूला शीट आपके पास होगी ना चैप्टर वाइज, तो वो फार्मूला शीट आप यूज़ कर सकते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर। और टैक्स से भी कुछ एक क्वेश्चन आपके उठा लिए जाते हैं प्रैक्टिकल जो होते हैं, स्पेशली कैपिटल बजटिंग वगैरह के। तो आप फार्मूला शीट मेंटेन करिए, वो फार्मूला शीट एग्ज़ाम के अंदर लेके जाइए, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप जो है स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो प्रॉपर्ली अगर उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, तो
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उनके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बैंकिंग और कैपिटल कमोडिटी मार्केट में। थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलिएगा उसके अंदर आप। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड मास्टरी टू अप्लाई। रियल अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे, अप्लाई करना है आपको, रैदर दैन टू सिंपली रिकॉल, रेप्लिकेट एंड रिप्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखते हैं इंस्टीट्यूट का। मैंने क्वेश्चन पेपर ओपन किया है। दिस इज़ योर इंटरनेशनल बिजनेस लॉ दिसंबर 2016 अटेम्प्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरह आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, बिकॉज आई विल रिक्वेस्ट दैट इफ़ पॉसिबल आप लोग जो है स्टार्ट करिए अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक में मिलते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए आप टाइम ज़्यादा ना लगाएं, बिकॉज ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता और वो 20-25 मिनट उसमें लगा देते हैं और बाद में वही टाइम आपको आगे जाके पेपर छोड़ने के लिए मजबूर करता है। तो हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको जाके एटलीस्ट 10-15 मिनट फ़्लो बनाने में लग जाते हैं, एक फ़्लो, बट 15 मिनट से ज़्यादा तो आप एटलीस्ट फर्स्ट मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मत करिए। उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो आपको मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि आगे जाके आपको जो टाइम है उसको मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर अपने 20 नंबर के जो इजी क्वेश्चन है जो डायरेक्टली मॉड्यूल में से मिलते हैं वो कर सकते हैं अटेम्प्ट, ओके। और उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले कर सकते हैं और फिर केस स्टडी कर सकते हैं। अगर केस स्टडी आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लास्ट में आपको, अगर आप शुरू में 4-5 लाइनों से पता पड़ जाता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लास्ट में आपका दिमाग नहीं चलेगा इसमें, तो आप वो शुरुआत में भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा केस लॉ आपका 1.25 घंटे में ख़त्म हो ही जाना चाहिए। एटलीस्ट 1 आवर 15 मिनट से ज़्यादा आपको केस को नहीं देना है। अगर आपने 1 आवर 15 मिनट से ज़्यादा दिया तो चांसेस हैं कि आपका पेपर छूट सकता है पीछे का, बिकॉज पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको टाइम ज़्यादा लगता है ढूंढने में केस स्टडी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 आंसर यहीं डायरेक्टली मिल जाते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल कमोडिटी मार्केट में अलग सीन है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, बट उनका भी यही है कि जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करिए। और केस स्टडी का मैं आपको जो है एक बार हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। ये केस था पिछली बार का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। सबसे पहले इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बता रखा है, उसके बाद में ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री के बारे में बता रखा है। और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सबसे पहले केस आया आपके पास में तो 4-5 लाइन आप स्टार्टिंग की पढ़ के देखिए। क्या लिखा है, आयरन स्टील सेक्टर इज़ द शीट एंकर ऑफ कंट्रीज ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज इट प्रोवाइड्स एन इंडिस्पेंसिबल बेसिक इनपुट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, दिस इंडस्ट्री कमांड्स लार्ज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस दैट पेव द वे फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन. For these and many other reasons, steel industry is often considered as the backbone of the economy. कुछ ज़्यादा टफ नहीं है केस स्टडी ना, मतलब कभी कभी आता है केस थोड़ा सा समझने लायक, थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी हार्ड आती है, बट इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है। तो अगर ऐसे केस आएँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चंस पे जाइए। हमारे को स्कूल डेज़ के अंदर भी ऐसा बोला जाता था, हमारे को तो टीचर्स ने बोला था कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप केस पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चंस बैक ऑफ द माइंड रहे। बट वहाँ पर क्या होता था ना कि हमारा जो केस आता था वो 2 पेज का आता था, तो वहाँ पर हम पेज टर्न करके जो है हमारा देख सकते थे कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि 6 पन्ने की केस स्टडी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है केस पढ़ रहे हैं और आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लिए हैं बट वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है, जो मैंने भी करा था अपने एग्ज़ाम के अंदर, वो ये है कि आप क्वेश्चन जो है ना, अपनी आंसर शीट होती है, आंसर शीट के पीछे वाले पेज पे पेंसिल से लिख लीजिए, या पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाद में उसको कट कर दीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज इन द ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री ड्यू टू डिमांड स्केर्सिटी। तो लिख लीजिए कॉन्सिक्वेंस इन ग्लोबल
स्टील इंडस्ट्री ड्यू टू डिमांड scarcity. What are the causes according to you that led the industry to crisis? Causes that led industry to crisis. शॉर्ट में लिखना है, राइटिंग मैटर नहीं करती है, रफ में लिख रहे हैं। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लिखने में नहीं लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन, वाई स्टील इंडस्ट्री इज considered as backbone of Indian economy? Why steel industry backbone of Indian economy? What are the common problems that industry is facing in its regular operation? Problems faced by industry in its regular operations. Being an international expert, suggest steps to boost the industry. इससे छोटा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 5 क्वेश्चन लिख लीजिए। मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है स्क्रीन पे लिखने में, बट जब आप पेन से या पेंसिल से लिखेंगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लिखा, अब हम जो है जाएंगे केस पे, जाएंगे ऊपर चलेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं, चलिए पढ़ना चालू करें। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, केस आपके सामने रहेगा। Iron and steel industry requires cautious strategic planning. Iron and steel sector is the sheet anchor of country's overall industry's growth, as it provides an indispensable basic input for various industries. This industry commands large backward and forward linkage that pave the way for further industrialization. For these and many other reasons, steel industry is often considered as the backbone of an economy. Why steel industry is the backbone of Indian economy? ये रहा आपका आंसर। पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया आपको। देखिए क्या फ़ायदा हुआ, आपने पढ़ना चालू किया, क्वेश्चन आपका सामने पड़ा है। अब जैसे बैकबोन, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। कॉन्सिक्वेंसेज इन ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री ड्यू टू डिमांड स्केर्सिटी, कॉन्सिक्वेंस को आप कर लीजिए, ड्यू टू डिमांड स्केर्सिटी, ठीक है। तो एकदम से ना आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन सामने हैं तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों है, आपको आंसर मिल गया, यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ मार्क कर दीजिए आप, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आपको इस नीचे वाले पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाए, मार्क कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इस तरह से जब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे जब पूरा केस पढ़ा है तो आपके सारे आंसर्स मार्क हो जाएंगे जो आपको दे रखे हैं। जो नहीं इनडायरेक्टली दे रखे हैं, मॉड्यूल रेफ़र करना है जिनके लिए, वो तो केस में मिलेंगे नहीं, बट जो दे रखे हैं एटलीस्ट वो तो मार्क हो जाएंगे। तो आपका इससे टाइम बहुत सेव होगा। अगर आप पहले केस पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर वापस से क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, डबल टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चंस अगर पढ़ते हैं फिर केस पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहेंगे। यहाँ पे 2-3 मिनट क्वेश्चन लिखने में लगेंगे, बट इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता था बैंकिंग वालों के लिए कि बैंकिंग में इस बार बहुत चांसेस हैं कि डीमोनेटाइजेशन पे आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, बिकॉज 8 नवंबर 2016 में आपका डीमोनेटाइजेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाइयों और बहनों कह के जब लागू किया था, तो उस जो भाइयों बहनों का जो लागू किया गया था वो दिसंबर में एग्जामिनर नहीं क्वेश्चन पेपर सेटर नहीं पूछ पाया था, बिकॉज 6 मंथ्स के पहले की चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं। बट इस बार चांसेस हैं, डीमोनेटाइजेशन एक वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट है, एक पिछले 4-5 महीनों में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है केस उस पर आ जाए। तो आप जो है रिसेंट जो आपके अपडेट्स हैं ना पिछले 3-4 महीने के डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड, वो एक बार देख लें, हो सकता है छोटे क्वेश्चन में भी पुटअप किया जा सकता है।
तो जितना आपको नॉलेज होगी, जितना आप चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स पुट अप करके आएंगे, बैंकिंग में आप दूसरी जगह पे भी वो डीमोनेटाइजेशन के फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं ना कहीं पे पुट अप करके आ सकते हैं, रेलिवेंट अगर लगता है क्वेश्चन में करना है तो आप कर सकते हैं। तो एक डीमोनेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। बाकी तो अब पता नहीं क्या पूछा जाएगा, बट बता सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा, कैपिटल कमोडिटी मार्केट और ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें सेक्शंस हैं, सेक्शंस कोड करके ज़रूर आइए, बिकॉज बुक एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप एज इट इज़ बुक से उतार रहे हैं, तो एटलीस्ट जो कि आपके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर लीजिए एग्ज़ाम में, वो सेक्शंस प्रोविजंस लिख के आया, ताकि आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा सेक्शंस लिखने का। प्रोविजंस के साथ सेक्शन लिखेंगे तो, क्योंकि ओपन बुक है, वैसे तो हम कह सकते हैं कि हमें सेक्शन नहीं याद होते, बट बुक में दे रखे हैं तो आप लिख सकते हैं ना सेक्शंस, सो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा डायरेक्टली है कि डिफाइन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उस केस में आप जो है ना टू द पॉइंट आंसर लिखिए, एक आध लाइन में इंट्रोडक्शन टाइप लिख के, और उस चीज़ की डेफिनेशन लिख दीजिए जो मॉड्यूल में दे रखी है। ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाइए। आंसर जो है कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा सा आपको बस लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ेगी जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद नोइंग योर बुक प्रॉपरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मूला शीट कैरी करिए, मैं पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉपर स्टेप वाइज जो है क्वेश्चंस करके आइए। बेयर एक्ट आप लेके जा सकते हैं, सेबी का बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं, कंपनी लॉ का बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं मॉड्यूल के अलावा, बिकॉज बेयर एक्ट में आपको हर एक चीज़ दे रखी होती है, इसलिए कह रहा हूँ। रटना आपको बिल्कुल नहीं है। केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है वो मैंने आपको बताया है, हाउ टू हैंडल द केस स्टडी। लेंथ ऑफ द आंसर डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लिखना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मोदी जी बोलते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, सो ज़्यादा लिखना अच्छी बात नहीं है इस पेपर के अंदर। टेक्निकल वर्ड्स एंड सेक्शंस कोट करें, स्टैट्स एंड डेटा बुक्स में लिख लें तो बेटर है, ओके। इसके अलावा जब आप घर पे पढ़ रहे हैं तो चीज़ें मार्क करिए, मतलब वापस से रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले आप डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्टली अटैम्प्ट करने से पहले 2-3 लाइन में जनरल इंट्रोडक्शन दें क्वेश्चन का, उसके बाद आप डिस्टिंग्विश बिटवीन करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन आप टेबुलर फॉर्मेट में करें, ना कि पैराग्राफ फॉर्मेट में। बेसिस लिखें, पहला पॉइंट, पहला और दूसरा, ठीक है, 3 कॉलम बना लें, बेसिस, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। इस तरह से आप करिए। 5 मार्क्स का है, 5 पॉइंट करिए। 2-3 लाइन में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जरूर दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और कंक्लूजन दे दें तो सोने पे सुहागा, अगर टाइम परमिट करता है। जगह छोड़ दें बाद में टाइम मिले तो, ठीक है। और बेसिस जो है आप जब पढ़ रहे हैं अपने बुक में, अगर कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो वहाँ पर अगर बेसिस नहीं दे रखा है तो आप अंडरलाइन करके बना सकते हैं कि ये बेसिस हो सकता है, और वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा इसके लिए। सब हेडिंग्स जो है वो आप लिख सकते, सब हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। कोई हेडिंग है बहुत ज़्यादा उसमें लेंदी चल रहा है तो सब हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग मैंने आपको बताया है कि आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो बेटर रहेगा। पैराग्राफ फॉर्म में पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट मत करिए, और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पेपर आप जो है अटैम्प्ट करें एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको एग्ज़ाम के बाद निकल के ये ना लगे कि यार काश मैं एक पेपर कर लेता तो मुझे पता रहता कि किस तरह टाइम मैनेज होगा। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली से यू, जब आप एग्ज़ाम से लिखेंगे ना, थोड़ा सा आप निकलेंगे, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा यार एक पेपर पहले लिख लेता तो, यार एक पेपर पहले लिख लेती तो बहुत अच्छा रहता। तो लिख लीजिए ना, 3 घंटे ही तो लगेंगे। कोई भी पुराना पेपर, सैम्पल पेपर उठा के ले लीजिए, लिख लीजिए उसको। टाइम मैनेज कैसे होगा तभी आपको पता पड़ेगा, ठीक है। IBL इंटरनेशनल बिजनेस लॉ का अगर आपको पेपर देना है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पेपर देना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टेस्ट पेपर चाहिए तो मैं आपका को पेपर सेंड करूँगा, आप मुझे वापस लिख के भी दे सकते हैं। आई विल चेक एंड टेल यू द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, ओके। सो ये चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपने आई होप इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। आई विल
से दैट आपको जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई है एक बार उसको वापस से गौर करिएगा। आपने आई होप लिखी होंगी अपने कॉपी में या जहाँ पैड के ऊपर। सो आई विल अगेन टेल यू दिस पेपर कैन help you a lot to clear the your third module, it or even you for making your CS it can play a crucial role। बहुत अच्छा पेपर है, इम्पॉर्टेंट पेपर है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड पेपर है। अच्छे से पढ़िए इसको, बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम इसको बट डिवोट करिए। यू कैन स्कोर वेरी वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इफ़ एनी क्वेरी you can write back to me. I have already provided you my email ID csllbkarthikchaudhary@gmail.com and my number I am writing once again 7877416298। wish you all the best। relax होके पढ़िए और टेंशन मत लीजिए। you will clear, you will surely clear। बस ये है बैक ऑफ द माइंड, ये टेंशन लेके मत चलिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये टेंशन लेके मत चलिए। आराम से पढ़िए, एन्जॉय करके पढ़िए, यू विल डेफिनेटली क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।